Hello students, come to the class 11 microeconomics chapter 6 concept of cost. Today we will discuss about the various concepts of cost. As you know, while a producer is going to produce a particular commodity, he has to incur certain expenditure for acquiring various factor as well as non-factor inputs to produce that particular commodity. So, it incurs certain costs he has to pay to acquire the various factor as well as non-factor inputs for producing the particular commodity. एक प्रोड्यूसर जब किसी वस्तु की उत्पादन करना चाहता है तो उसे दो तरह की वस्तुओं का क्रय करना पड़ता है और ये दो तरह की वस्तुओं को मिला करके वह कोई भी कमोडिटी उत्पादन करता है। एक है फैक्टर इनपुट और दूसरा कहलाता है नॉन फैक्टर इनपुट। तो ये फैक्टर इनपुट या नॉन फैक्टर इनपुट प्रोड्यूसर के यहाँ खुद के पास तो नहीं है, लेकिन गड़बड़ हो गया, वह दूसरे फैक्टर्स को दूसरों से वह परचेज करता है, तो उसको परचेज करने में पेमेंट करना पड़ा, कॉस्ट इनकर करता है, उसी को कॉस्ट है, लागत जिसको कहते हैं, किसी वस्तु के उत्पादन में कितनी लागत आती है, उसके संदर्भ में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए, यहाँ मैंने दो चीजें आप लोगों को बताई, एक फैक्टर इनपुट्स और दूसरा नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स किसे कहेंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। These are the four factors which are required to produce any commodity in the economy. Only these four factors are responsible to produce all the commodities in the economy, starting from a needle to a aeroplane or rocket, whatsoever it may be. Only four factors are employed to produce any type of commodity in the economy. ठीक है, तो इकोनॉमी में पूरा कोई भी वस्तु उत्पादन करने के लिए सिर्फ यही चार फैक्टर इस्तेमाल होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, all these are the non-factor inputs. So, to produce any commodity, the producer has to pay for acquiring these factor as well as non-factor inputs from the economy. So, the payment incurred is considered as the cost of production of that commodity, which is paid to acquire that commodity. Okay. There are certain things, that is cost function, the relationship between input and output is considered as cost function. C is equal to function of Q. इनपुट और आउटपुट के टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, नाउ कम टू दी टाइप्स ऑफ कॉस्ट। व्हाट आर दी concepts related to cost of production? There are several types of cost, that is real cost, social cost, and number 3, explicit cost and implicit cost. Implicit cost, explicit
cost and opportunity cost. आइए देखते हैं ये क्या है। रियल कॉस्ट। व्हाट इज रियल कॉस्ट? द एक्चुअल pain, discomfort, or the sacrifice, physical efforts spent on producing a particular commodity is called cost. It cannot be measured in monetary term. ऐसा श्रम जो हम लगाते हैं किसी काम को करने के लिए, रियल क्या दर्द हुआ, कितना दर्द हुआ, कितनी मेहनत करनी पड़ी, जो मॉनेटरी वैल्यू में मेजर नहीं की जा सकती है, वह कहलाती है रियल कॉस्ट। जो भी दुख दर्द हुआ वह रियल कॉस्ट कहलाती है। मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स spent to produce a commodity. This cost cannot be measured in terms of money as it is subjective matter. इस चीज को हम मनी वैल्यू में मेजर कभी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। एक आदमी के जीवन की कीमत पैसे में हम नहीं लगा सकते, ठीक है? That is called real cost. And second one is social cost. If a particular production unit producing certain commodities in a particular area, in a particular society, in the economy, the discomfort suffered by the society due to that production unit is called social cost. Say, the production units throw several types of ingredients in the air, water, and atmosphere, which ultimately hamper the society. This is borne by the society itself, and for this the production unit is not going to pay anything. एक प्रोडक्शन यूनिट अगर जिस सोसाइटी में, जिस लोकेलिटी में स्थापित होती है, वहां पर वह उस प्रोडक्शन यूनिट से जो समाज को क्षति होती है, किस प्रकार की, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, उससे जो ध्वनि होती है, लोगों को वहां जो निवास करते हैं उनको असुविधा होती है, नुकसान होता है, उससे डिस्कम्फर्ट होता है, पानी दूषित होता है, एयर दूषित होता है, हवा में स्मोक छोड़ रहे हैं, सांस जो हवा की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तरह तरह की बीमारी होती है। दिस इज कॉल्ड सोशल कॉस्ट। समाज वहन करता है इसको, ठीक है? उसके बाद है नेक्स्ट implicit cost. Implicit cost which is not paid by the user but used by him. आप अपने मकान में रहते हैं, क्या आप अपने मकान का किराया देते हैं? नहीं। लेकिन जिस तरह के मकान में आप रहते हैं वह आपका ही मकान है,
अगर उसी मकान को किसी दूसरे को देंगे तो वह आपको किराया देगा, रेंट देगा। मान लीजिए 1,000 रुपए प्रति महीने आपको किराया मिलता है। अगर आप स्वयं न रहते और उसको दूसरे को किराए पर देते तो आपको 1,000 रुपए मिलता, लेकिन आप स्वयं रह रहे हैं तो आप स्वयं को 1,000 रुपए नहीं दे रहे हैं। This 1,000 रुपए is called implicit cost। इस कॉस्ट को कहते हैं इम्प्लीसिट कॉस्ट। यह वे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जोड़ा जाता है। भले ही आप नहीं दे रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट जोड़ती है। आपका मकान है, आप रह रहे हैं, किराया नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसी तरह के मकान में आप दूसरे जगह रहते तो आपको किराया देना पड़ता, वहां आपका खर्च होता। दिस कॉस्ट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब आइए लास्ट वन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जो कमोडिटी फैक्टर इनपुट या नॉन फैक्टर इनपुट प्रोड्यूसर बाहर से परचेज करता है और उसके लिए पेमेंट करता है, तो वह जो पेमेंट करता है वह एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। उसके बाद आता है लास्टली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। The next best alternative for both is called opportunity cost. Just in the first chapter I have explained and given this definition. The next best alternative for one is called opportunity cost. इसके लिए हमने आपको पहले चैप्टर में एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था कि एक डॉक्टर अगर उसके पास 3 ऑप्शन हैं, अगर वह स्वयं अपने लोकेलिटी में प्रैक्टिस करता है तो 5,000 रुपये मांगे कमाता है। अगर किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में वह सेवाएं देता है तो 10,000 रुपये कमाता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसके सर्विस मिल जाती है तो वह 15,000 रुपये कमाता है। तो क्या करेगा? वह जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करना पसंद करेगा। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन उसके लिए क्या हो गए? 10,000 रुपये। जो नर्सिंग होम में वह प्रैक्टिस करता है उसके लिए उसको मिलते 10,000 रुपये, वह फॉर वन हो गया। अगर गवर्नमेंट की सर्विस नहीं मिलती तो उसके पास वह क्या करता? नर्सिंग होम में सर्विस करता, क्योंकि 10,000 रुपये उसे वहां मिल रहे थे। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव उसके लिए क्या है? नर्सिंग होम में सेवाएं प्रदान करना। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट which is incurred by the producer in producing a particular commodity. Now come to the aspects or concepts of cost of production. Cost of production कि क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या कंसेप्ट्स हैं? टोटल कॉस्ट, देयर आर 3 types of mainly cost: total cost, average cost and marginal cost. Total cost is of 2 types: total fixed cost, total variable cost. Average cost is also of 2 types: average fixed cost and average variable cost. तो ये जो मुख्य रूप से 3 तरह के कॉस्ट होते हैं: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को फिर से हम 2 भागों में विभाजित करते हैं: टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को 2 भागों में विभाजित करते हैं, वह है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये मुख्य 3 तरह के कॉस्ट हैं। टोटल कॉस्ट refers to sum of all expenditure incurred by the producer in producing a given quantity of a
commodity is cost of factor and non-factor inputs. कोई भी फैक्टर या नॉन फैक्टर इनपुट्स के लिए जो प्रोड्यूसर पेमेंट करता है उसे कहते हैं टोटल कॉस्ट। यानी कि एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में जितनी भी तरह की कॉस्ट प्रोड्यूसर ने पे किया है वह टोटल कॉस्ट में कंसीडर होता है। इस तरह हम टोटल कॉस्ट को कह सकते हैं TFC प्लस TVC, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ने पर जो कॉस्ट आता है उसे कहते हैं टोटल कॉस्ट। अब आइए देखते हैं कि यह टोटल कॉस्ट क्या होता है और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट जैसा कि हमने देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में, और टोटल कॉस्ट है चाहे वह फिक्स्ड नेचर हो चाहे वह वेरिएबल नेचर हो। अब आइए देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, the expenditure incurred to acquire the fixed or permanent type of assets to produce a particular commodity is called fixed cost, and it never vary whether the production is zero or whether the production is 100, 1000, whatsoever it may be. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, उस कॉस्ट में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। वह खर्च होना मस्ट है प्रोडक्शन के दौरान, चाहे वह 0 यूनिट का प्रोडक्शन हो चाहे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हो, उस कॉस्ट में किसी प्रकार की कमी बेसी नहीं होती है। वह खर्च होगा तो होगा, फिक्स्ड नेचर कहलाता है, इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब आइए देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट वह कहलाता है जो कि जैसे जैसे प्रोडक्शन की यूनिट बढ़ती है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होता है वैसे ऐसे वेरिएबल कॉस्ट कम होने लगता है। ज्यादा उत्पादन ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, कम उत्पादन कम वेरिएबल कॉस्ट। वैरी करता है, वैरी माने परिवर्तन, फिक्स माने स्थिर। फिक्स कभी बदलेगा नहीं और वेरिएबल हमेशा बदलते रहेगा। यही डिफरेंस है फिक्स्ड और वेरिएबल। तो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कितना पड़ा? देयर आर सेवरल एग्जांपल्स लाइक construction of building, acquiring plant and machinery, hiring permanent staff, paying salaries to the permanent staff. All these are the fixed nature of cost in a production unit. एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, चाहे वह 1 यूनिट उत्पादन करना हो चाहे 1000 यूनिट उत्पादन करना हो। बिल्डिंग बनवानी ही पड़ेगी, मशीनरी खरीदनी ही पड़ेगी, और एक परमानेंट स्टाफ रखना पड़ेगा जो मशीनरी को चलाएगा, हैंडल करेगा, वर्क को हैंडल करेगा। परमानेंट स्टाफ रखेंगे, उसे सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे उत्पादन हो या ना हो, सैलरी तो देनी देनी। तो ये फिक्स्ड नेचर ऑफ
कॉस्ट है, इसलिए इसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। टोटल सब जुड़ गया, जोड़, बिल्डिंग, मशीनरी, परमानेंट स्टाफ, है ना, तीनों को जोड़ दिए तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब आइए देखते हैं वेरिएबल नेचर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करता है। रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, जो रॉ मटेरियल हम उत्पादन के लिए ले आएंगे, जितना लाएंगे उतना हम उससे उत्पादन करेंगे। मशीनरी स्वयं नहीं ना करे देगी कोई, उसमें रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा, तभी तो वो कोई चीज बनाएगी, कन्वर्ट करेगी। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए एक आटा पीसने वाली चक्की, उसके लिए बिल्डिंग बनवाओ, एक रूम बनाओ, उसमें आटा की चक्की लगवाओ, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लो, एक वर्कर रखो जो मशीन को हैंडल करे, गेहूं डाले, आटा निकाले। तो गेहूं जब डालेंगे तो गेहूं खरीदना पड़ेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट। 1 कुंटल खरीदेंगे तो 2000, 4 कुंटल खरीदेंगे तो 8000, बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ये वैरी कर रहा है, जीरो उत्पादन कर रहे हैं हम, आटा नहीं पीस रहे, गेहूं नहीं पीस रहे, जीरो। लेकिन मशीनरी का कॉस्ट, बिल्डिंग का कॉस्ट, वो तो लग गया, वो तो वापस होना नहीं है। जो स्टाफ रखे हैं उसको सैलरी देनी पड़ेगी, जो वर्कर रखे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब आइए देखते हैं according to the schedule and graph, we can also understand the costs. For example, as we have seen that variable cost is going to increase and decrease as the units of production are going to increase and decrease. वेरिएबल कॉस्ट क्या हमने देखा अभी कि जीरो उत्पादन करेंगे तो जीरो वेरिएबल कॉस्ट, ज्यादा उत्पादन करेंगे 10, 50, 100, 1000, तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते जाएंगे वह उसका कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए वह जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो लेवल पे क्योंकि जीरो होता है और धीरे धीरे पॉजिटिवली स्लोप होता है। ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसमें थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई देगा, वह है टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे जीरो, और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे देखिए, यहां पर मान लो ये 0 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, ये 20 यूनिट है, इस पर लाइन खींचो, देखो 20 पर इतना बढ़ गया, 10 पे इतना बढ़ गया, ठीक है, बढ़ते जा रहा है और घटते क्रम में घटते जा रहा है। लेकिन एक ही ग्राफ में अगर हम टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे? तो इस तरह हम दर्शा सकते हैं। देखिए ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये ओरिजिन, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये है आपका TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि ये 100 यूनिट्स टोटली, ठीक है। ये ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, चाहे 0 यूनिट प्रोडक्शन करें चाहे 1000 यूनिट प्रोडक्शन करें, या कॉस्ट ऑलवेज सेम है, इसलिए पैरेलल जो x एक्सिस होता है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर से, क्योंकि यहां से वह
शुरू होता है इनकर होना, ये हो गया आपका टीबीसी। और यहां से जो शुरू होता है ओरिजिन से वह पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। यह जो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है यही कहलाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या ये जो डिफरेंस है यह कहलाता है पैरेलल का यह फिक्स्ड कॉस्ट, या ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर सेम डिस्टेंस है, सेम रहता है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। आज यहीं तक, अगले दिन दूसरा टॉपिक देखेंगे। रेस्ट इज वेल, थैंक यू।